t is equal to -1, then magnitude will be equal to -1 plus 2, that is equal to +1. Similarly, when t is equal to -2, then it will be -2 plus 2, that is equal to 0. For rest of the values, that is otherwise, for rest of the values, the magnitude will be equal to 0. So this is how we plot the given signal, that is x of t, right? So this is the step number 1. Now the step number 2. So we are discussing the time shifting operation. Right. So this is how we plot the given signal. Now let us assume that we have to find yt, where yt is equal to xt plus t naught. So we have to obtain another signal from x of t, where the new signal is written as xt plus t naught. Now this t naught can be greater than 0 or it can also be lesser than 0. Both the cases can be possible. So let us start with the first case, that is when t naught is greater than 0. So when t naught is greater than 0, let us assume that t naught is equal to 2. It can be anything, but let us assume that it is equal to 2. So when t naught is equal to 2, then yt can be written as xt plus 2, right? T naught की जगह हमने 2 substitute कर दिया. So when we substitute, so when we substitute t naught is equal to 2, then it will become yt is equal to xt plus 2. Now how to plot xt plus 2? So first of all, let us go with the mathematical expression. So yt will be equal to this expression, that is, instead of t, let us now write t plus 2. Right? In the original mathematical expression, we have t plus 2. Now we are finding t, y of t, where y of t is equal to xt plus t naught. Right? And we are assuming that t naught is equal to 2. So let us substitute t naught equal to 2, this becomes t plus 2, or you can say that we are replacing t with t plus 2. So when you replace t with t plus 2, this will become t plus 2 plus 2 and t in between -2 to 0. So instead of t, now we are replacing t with t plus 2, right? So similarly, for this particular interval, when t is between 0 and 3, let us replace t with t plus 2, right? And the value will remain same, that is equal to 2, because it is independent of the time interval. So it will remain a constant, and otherwise the value will be equal to 0. So let us simplify this mathematical expression. So yt will be equal to t plus 2 plus 2, that is t plus 4, right? Other values will remain same. Interval. So interval is going to be modified. This 2 will go towards the left hand side and right hand side and change its sign. So जैसे ये 2 इस तरह move करेगा, it will become -2. So -2 minus of 2, that is -2 plus -2 will be equal to -4, and 0 -2 will be equal to -2. Similarly, for this interval, when 2 will move towards the left hand side, it will be 0 minus 2, that is -2, and 3 minus 2, that is equal to 1. So this interval is now this interval now has been modified, right? If you compare it with the initial value, now we can plot the this particular mathematical expression to see what happened to the signal, right? So you can say that yt is defined between -4 and 1, right? Between -4 and +1. And if you compare it with xt was earlier defined between -2 and +3. So this is, you can say that this is the difference between x of t and yt. Xt, which is defined between -2 to 3, let us again go to the mathematical expression of xt. So this is xt, which is defined between -2 and +3, right? Whereas the yt that we have obtained with the help of this particular assumption, that is yt is equal to xt plus t naught, and we are assuming that t naught is equal to 2. So this is xt plus 2, right? So this yt signal is now exists between an interval which is in between -4 and 1. So this is a change which has happened to the yt signal when you compare it with the xt signal.
graphically you can plot the signal. Let us assume that t is equal to 0. So when t is equal to, let us go with the interval first. So when t is equal to -4, then it will be -4 plus 4, that is equal to 0. So this is y of t, right? So similarly, when t is equal to -3, this will be -3 plus 4, that is equal to 1. When t is equal to 0, then it will be 0 plus, uh, this will be 0 plus 4, right? So this will be, the magnitude will be equal to, uh, so this interval is not valid for 0, it goes up to only -2, right? So similarly, you can check it for -2. When t is equal to -2, this will be -2 plus 4, that is equal to, magnitude is equal to 2. Similarly, when t is equal to 1, so the slope of the signal remain constant equal to 2. So -1 पे constant रहेगा, 2 का value 0 पे भी constant रहेगा 2, and at 1 its value will be same as that of the uh, given constant value, that is equal to 2. Otherwise, that is for t greater than 1 and t lesser than -4, the magnitude will be equal to 0, right? So this is the new mathematical expression, and this is the graphical representation of this signal y of t, right? So this is how we have obtained the y of t with the help of mathematical expressions. Now let us see, if you compare it graphically with the initial signal xt. So let us see what has happened to the new signal, that is yt. So this is a signal xt, and yt is equal to xt plus t naught, right? xt plus t naught जो है, जहाँ xt plus 2 जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। ये सिग्नल जो है, ये xt सिग्नल 2 यूनिट से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया है। ये पहले -2 तक था, अब -2 से 2 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड पे जब शिफ्ट होगा, तो ये -4 से स्टार्ट होगा और 1 पे एंड हो रहा है। ये -2 से स्टार्ट हो रहा था और 3 पे एंड हो रहा था। So this signal xt has been shifted towards the left hand side by 2 units, right? So this is the this is known as, that's why it is known as time shifting operation. That is, the signal gets shifted either towards the left hand side or towards the right hand side, depending upon the whether you are adding something or subtracting something from the given signal in time domain, right? So yt is equal to xt plus 2, right? This is xt plus 2. So yt can be defined as an advanced version of the signal of xt, right? तो हम yt को बोल सकते हैं, this is an advanced version of xt. Why advanced version of xt? Because now whatever is happening in the y of t, right, it is happening 2 units earlier as compared to xt, right? जो भी इसमें आपके y of t में जो characteristic जो signal behave कर रहा है, वो 2 यूनिट अर्ली हो गया है, और दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एडवांस सिग्नल. So whatever is happening in the signal is happening 2 units earlier as compared to xt. That's why it is known as a advanced version of the original signal. Otherwise the shape of the signal does not get affected, right? आप देख सकते हो कि जो सिग्नल का शेप है, वो बिल्कुल उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, दोनों का शेप सेम है, दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है। 3 माइनस माइनस ऑफ 2 दैट इज 5, माइनस ऑफ 1 माइनस माइनस ऑफ 4 दैट इज 5। सो दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है, 5 यूनिट्स, राइट? बट सिग्नल जो है, इट हैज experienced a shift towards the left hand side, and that's why it is known as advanced version of the signal, right? So when you are adding something to the original signal, that is, you are finding yt which is equal to xt plus t naught, then the signal will get shifted towards the left hand side by the t naught units, and the signal is known as advanced version of the original signal. So this is the first part of the time shifting operation. So if you have any question, then you can ask. Yes, any question regarding the time shifting operation? Yes, Saurabh Balla, 106 roll number. Yes, Saurabh Balla. 108 Shipra. Yes, sir.
शिप्रा कोई डाउट तो नहीं आपको इसमें No, जो अभी no, डिस्कस किया है? sir. So try to find xt minus t naught. Xt minus yt is equal to xt minus 2, राइट? यहाँ पे हमने जो अभी किया है उसमें हमने t नॉट का वैल्यू 2 अज्यूम किया था ना, तो t नॉट का वैल्यू -2 अज्यूम करके सिग्नल का वेव फॉर्म स्केच करके दिखाओ, ठीक है शिप्रा? शिप्रा क्लियर है जो पूछा मैंने अभी आपसे? यस शिप्रा? यस सर, इसको सॉल्व करके दिखाना है। हाँ, इसको सॉल्व करना है आपने। यू हैव टू फाइंड xt माइनस yt इज इक्वल टू xt माइनस 2, राइट? अभी हमने xt प्लस 2 फाइंड आउट किया ना, तो xt माइनस 2 फाइंड आउट करके बताना है आपने। वेट सर, हाँ, उसको ग्राफिकली स्केच भी करना है। रोल नंबर 121, 121 तथागत। तथागत 121, 124 वैभव शर्मा। यस सर। यस वैभव, कोई इसमें डाउट हो, कोई कुछ पूछना हो आपको? नहीं सर, आ गया समझ। आ गया? तो जैसे शिप्रा को बोला, आप भी प्लॉट करके देखो xt माइनस 2 कैसे का वेव फॉर्म कैसा आएगा, वो आपको प्लॉट करके बताना है। जी सर 0 to 5 में राइट में शिफ्ट हो जाएगा। Yes, it will get shifted towards the right hand side, यस सर। right? And that interval will be 0 to 5. 5. Yes. So whether how will you define that signal? इसको आप advanced बोलोगे या delay बोलोगे? Yes, शिप्रा। ये एडवांस, जैसे हम पिछले को एडवांस बोल रहे थे, तो इसको डिले बोल सकते हैं। यस सर, डिले बोलेंगे। इसको डिले बोल सकते हैं। क्यों डिले बोल सकते हैं? सर शिप्रा, इसको डिले सिग्नल क्यों बोल सकते हैं? क्या रीजन दोगे इसका? मतलब कि बिकॉज बाद में y में चेंज होता है, x में पहले चेंज हो रहा है। वैभव, आप भी बताओ कि इसको डिले सिग्नल बोल सकते हैं क्या? यस सर, बोल सकते हैं। वो xt वाले से सर 2 सेकंड बाद में आते हैं सर उसका सिग्नल, जो नया। So we can call this signal as a delayed signal because whatever is happening in this new signal has already happened in the initial signal. So that's why it is known as a delay signal. इसमें जो भी चीज हो रही है वो डिले हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसको इनिशियल सिग्नल से कंपेयर करो xt से, तो उसका शेप तो सेम है, दोनों का शेप सेम है, इंटरवल भी सेम है, बट जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं वो अब 2 यूनिट्स जो हैं वो बाद में हो रहे हैं। सो दिस इज xt प्लस 2, तो ये आपके पास xt माइनस 2 का रिजल्ट है, राइट? तो ये हमने पहले मैथमेटिकली किया और फिर उसका ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड आ गया, और ये स्टेट विद ग्राफिकल एक्सप्रेशन है। दिस इज xt, नाउ व्हाट इज yt? yt is xt minus 2, so the signal will get shifted towards the right hand side by 2 units. So ये आपका इनिशियल बहुत ही इनिशियल न्यूमेरिकल में वर्क है। आगे चल के आपको बहुत सारे शिफ्टिंग ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे सिग्नल्स पे, तो कभी भी हम इस तरह से जो ये इस साइड पे किया हुआ है मैथमेटिकल डेरिवेशन, ये कभी नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आगे चल के न्यूमेरिकल बहुत लेंथी हो जाते हैं, ठीक है? जैसे चैप्टर नंबर 2, 3 पे पहुंचेंगे तो न्यूमेरिकल बहुत लेंथी हो जाएंगे। अगर उस पर आप टाइम शिफ्टिंग इस तरह से सॉल्व करोगे कि आप t की जगह t माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करो, फिर उसको सिंप्लीफाई करो, फिर उसको देख के ग्राफ प्लॉट करो, तो वो ज्यादा हो जाएगा। हम अभी, क्योंकि हमें पता लग गया है कि 2 तरह के टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन होते हैं, या तो एडवांस्ड शिफ्टिंग ऑपरेशन या डिलेड शिफ्टिंग ऑपरेशन। जब आप टाइम इंस्टेंट में कुछ चीज ऐड करते हो, पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहे होते हो, तो उसको हम जो है एडवांस वर्जन बोलते हैं, और जो आपका ग्राफ है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा
the shape will remain same, the time period will remain same, right? Only the signal will get shifted towards the left hand side by 2 units, right? अगर t की वैल्यू पॉजिटिव है, t नॉट की वैल्यू जिस वैल्यू से आप सिग्नल को शिफ्ट कर रहे हो, अगर वो वैल्यू उसमें ऐड हो रही है और पॉजिटिव वैल्यू है, तो सिग्नल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर जाएगा, उसकी शेप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हम उसको एडवांस वर्जन बोलेंगे। और अगर आप उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, टाइम डोमेन में से कुछ चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उतना ही यूनिट से सिग्नल राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, उसके टाइम पीरियड या उसकी शेप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट? तो अगर आपसे पूछा जाए xt+5 प्लॉट करो, xt+5 मीन्स ये xt सिग्नल है, इट विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड बाय 5 यूनिट्स। सीधा यहाँ पे -2 की जगह -2 में 5 यूनिट्स ऐड कर दो, -2 -5 दैट इज -7 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे -3 -5 दैट इज -2 पे वो एंड हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको बोला जाए कि xt-5 निकालना है xt से, तो वो 5 यूनिट्स राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ये 3 + 5, ये आपका -2 से स्टार्ट हो रहा है, तो -2 + 5 + 3 से स्टार्ट होगा, और 3 + 5 8 पे जाके वो एंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये क्लियर होगा, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, एडवांस्ड एंड डिलेड ऑपरेशंस। रोल नंबर 76 पारस, क्लियर है जो अभी हमने डिस्कस किया, एडवांस वर्जन एंड डिलेड वर्जन? रोल नंबर 76 पारस। 79 प्रभात कुमार मिश्रा। ठीक है प्रभात? यस सर। हाँ, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑपरेशन। ये हमने कर लिया है, अगला ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। दिस इज नोन एज टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, राइट? टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। So what is time reversal operation? So if you have any signal xt, हम जो पहले दिया हुआ है उसी को लेके चलते हैं। So this is xt which exists between -2 to +3। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने इसका पहले ही डिस्कस कर लिया है, कैसे प्लॉट करना है ये भी देख लिया है। Now we are discussing time reversal. So this is the second operation that you can carry over the independent variable, that is time. Time reversal, in case of time reversal operation, we change the sign of the time parameter. हम t को -t से रिप्लेस कर देते हैं। So let us again start mathematically. हमारे पास xt सिग्नल था जिसका वैल्यू था t+2। अब हम yt फाइंड आउट करना चाहते हैं, which is equal to x minus t. It means we have to replace t with -t in the complete mathematical expression. So let us replace t with -t. This will become -t+2. In between, instead of t, now we write -t. In between -2 to 0, right? For the interval between 0 and 3 for -t, now -t, the value will remain constant equal to 2, and for rest of the values, the signal has a magnitude is equal to 0, right? So अगर आप इसको xt से कंपेयर करो तो हमने इसमें कुछ खास नहीं किया, हमने सिर्फ जो है वो आपका t को -t से रिप्लेस कर दिया है। सो वी हैव रिप्लेस दिस t विद -t, यहाँ पर भी t को -t से रिप्लेस किया, इधर भी t को -t से रिप्लेस किया। सो वी हैव ऑब्टेन्ड we have obtained this mathematical expression. Now let us simplify it. ये तो आपका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। t जो है वो उसको आपको -t से रिप्लेस किया है, तो इट मीन्स t को आपने -t से रिप्लेस किया है, तो आपका साइन फ्लिप हो जाएंगे, ठीक है ना? अगर इसको फिर से आप पॉजिटिव डोमेन में लेके जाओगे तो यहाँ पे जो t है इसके साइन जो है वो फ्लिप हो गए, क्योंकि हमने t को -t को फिर से t में लिखा, क्योंकि हम ज्यादातर t जो है वो पॉजिटिव डोमेन में रख के ही ग्राफ प्लॉट करते होते हैं। तो हमें ये इसका थोड़ा आप बोल सकते हो कि हैबिट है कि t को हम पॉजिटिव डोमेन में लेके चलते हैं, तो उसका जब पॉजिटिव डोमेन में फिर से वापस लाओगे तो साइन फ्लिप हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, राइट? जहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू था वो लेसर देन और इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लेसर देन और इक्वल टू था ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। ये आपने मैथमेटिक्स में किया होगा तो आपको पता है कि ये इस तरह से होता है।
ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया. नाउ लेट अस प्लॉट द ग्राफ. So when you try to plot the graph, when say t is equal to 0, it will be equal to 0 plus 2, that is the magnitude will be equal to 2. When t is equal to plus 1, the magnitude will be minus 1 plus 2, that is equal to plus 1. When t is equal to 2, then it will be minus 2 plus 2, that is equal to 0, this point. Similarly, for the left hand side, when t is equal to minus 1, it is constant, that is 2. When t is equal to minus 2, again it is a constant value equal to 2. When t is equal to minus 3, again a constant value which is equal to 2. For rest of the values, the magnitude is equal to 0, right? So this is the sketch of yt which is equal to x minus t. Now let us try to relate xt and x minus t, right? तो जैसे आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो आपको पता लगता है that is yt is nothing but a completely a mirror image of the xt signal, right? That is yt is a mirror image of the xt signal, right? So we have flipped the signal along the vertical axis. तो जैसे ये सिग्नल था इसको वर्टिकल एक्सिस पे हमने फ्लिप कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो इसको जैसे आप फ्लिप करोगे इधर को तो ये आपके पास ये सिग्नल आ जाएगा. So we have flipped the signal along the vertical axis so that we can get the mirror image of the signal, right? So this is the second operation, that is a time reversal operation. जब भी आपसे पूछा जाए कि कोई सिग्नल आपको xt दे रखा हुआ है या h of t दे रखा हुआ है और आपको h minus t फाइंड आउट करना है या x minus t करना है, तो सिंपली उसके ग्राफ को आप फ्लिप कर दो along the vertical axis and you will get the mirror image of the original signal, and that is known as the टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, और x माइनस टी और h माइनस टी और g माइनस टी जो भी आपके पास सिग्नल होगा. So if you have any question then you can ask. This roll number 90, Rishit. Rishit Sehgal. Rishit Sehgal. Rishit Grover. Yes sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. कुछ पूछना तो नहीं इसके बारे में कुछ? नहीं सर समझ आ गया. दूसरे का नाम भी ऋषित है. कैसा आपको क्लास जब आपने ज्वाइन किया होगा तो आपको और नहीं लगा कि आपके नाम का एक और स्टूडेंट मिल गया? लगा तो था सर. ऐसे क्योंकि नाम एकदम से अलग है और उसी एकदम से अलग नाम का एक और स्टूडेंट मिल जाए. मे बी स्कूल में आपको नहीं मिला होगा. हाँ जी सर नहीं था. स्कूल में नहीं मिला होगा, यहाँ पे मिल गया. ऋषित साइकिल रोल नंबर 90. अभी तो वो म्यूट है, ठीक है? तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज द टाइम रिवर्सल ऑपरेशन. सो ये हमने कर लिया है. नेक्स्ट इज द टाइम स्केलिंग, ठीक है? इसको आप ध्यान से समझो, ये थोड़ा अलग है बाकी दोनों से. So there are two type of scaling operation. One is known as compression and another is known as expansion. Okay, there are two types of operations. One is known as compression and another is known as expansion. So let us again start with the original signal x of t जो हमने starting में लिया था example में, जिसको हमने plot भी किया था. It exists between -2 to +3. Now let us say we have to find a signal where the new signal yt is derived from the original signal xt by multiplying the time parameter with some scaling factor, right? Say let us say t is being multiplied by small a, right? एक वैल्यू है small a, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया. स्मॉल ए इसलिए बोल रहे हैं कि आगे चल के हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है डिस्कस करेंगे. उसके लिए हम कैपिटल ए जो है वो एब्रीवेशन यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादातर आपको स्मॉल लेटर्स में हम स्केलिंग ऑपरेशंस बताते हैं. सो yt इज इक्वल टू x as a bracket, right? X as a function of something. Yt is equal to x bracket at. Now this small a can be lesser than 1 or it can be greater than 1, right? There are two options available with us कि a का वैल्यू जो है वो greater than 1 हो सकता है या a का वैल्यू lesser than 1 हो सकता है, but provided a is greater than 0. क्योंकि 0 अगर आप 0 ले लोगे तो फिर तो सिग्नल ही x 0 हो गया, ठीक है ना? 0 पोजीशन पे क्या उसकी वैल्यू है वो आ जाएगा. तो हम जब a लेसर देन 1 बोलते हैं, इट मींस स्केलिंग ऑपरेशन में स्मॉल a की वैल्यू ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 अज्यूम की जा रही है. अगर a की वैल्यू लेसर देन 1 ले लोगे तो नेगेटिव में चला गया. वो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन हमने पहले ही कर लिया है.
ठीक है ना। तो ज्यादातर ए का वैल्यू जो हम लेके चलते हैं वो 0 और 1 के बीच में एक केस, और दूसरा कि ए का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए। जैसे लेट अस अज्यूम दैट ए का वैल्यू 1 से बड़ा है, दैट इज ए इज ग्रेटर देन 1, लेट अस अज्यूम दैट इट इज इक्वल टू 2, सो yt is equal to x as a function of twice of t. So we have to find this new signal which can be derived from the original signal. So let us again do the same operation जो हमेशा से अभी करते आए हैं, आपने स्कूल टाइम में भी किया होगा ऐसे सिग्नल्स को फाइंड आउट करने के लिए। Let us replace t with twice of t. तो हमने t को twice of t से रिप्लेस कर दिया ओरिजिनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में जहां जहां t आ रहा था, ठीक है। फिर उसको सिंप्लीफाई किया, ये 2 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इट विल बी -2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -1, 2 डिवाइडेड बाय 0 ये 0 ही रहेगा, नॉट डिफाइंड हम नहीं लेके चलेंगे, राइट, क्योंकि एक सिग्नल है आपके पास, उसका कुछ वैल्यू है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो राइट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल टू 0. So similarly here it will be 3 divided by 2, that is 1.5, and on the left hand side we will have 0. So this is the mathematical expression then that we get, right? Now let us try to plot this graph. So now we have a range of t between -1 to 0 which is lesser as compared to the previous thing. ठीक है, प्रीवियसली जो है वो -2 से 0 के बीच में थी, अब वो -1 से 0 के बीच में आ गई। So let us say t is equal to -1. So when t is equal to -1, it will be -2 plus 2, that is equal to 0. ये point. When t is equal to 0, 2 multiplied by 0 plus 2, that is this point, right? Similarly, go to the next interval when t is greater than 0, that is t is equal to say 1. Constant value when t is equal to 1.5, again 3 constant value at 3 by 2. For rest of the values, the signal is equal to 0, left hand side by b or right hand side by b. Now let us compare it with the original signal x of t. ठीक है, x of t से कंपेयर करके देखते हैं। इसका जो शेप है उसमें शेप में कोई इतना फर्क नहीं आया, शेप सेम ही है, सेम चीज है शेप में, बट ये जो सिग्नल है इसका इंटरवल रिड्यूस हो गया, राइट। पहले -2 से 3 के बीच में था, अब ये -1 से 3 by 2 में हो गया। अगर आप इन दोनों सिग्नल को कंपेयर करोगे तो आप इजीली बोल सकते हो कि नाउ दिस सिग्नल, द न्यू सिग्नल दैट वी हैव ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग टाइम विद सम स्केलिंग फैक्टर वेयर द स्केलिंग फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, this signal is appearing as a compressed version of the original signal. एक compressed version है original signal का. So whatever was happening earlier in xt is now happening in this signal at a very rapid rate. वो काफी उसका जो rate of occurrence है वो increase हो गया है. Shape same रही है but जो rate of occurrence है वो increase हो गया है. पहले वो -0 से 1 तक जाने में 2 यूनिट्स ले रहा था, अब 0 से 2 से जाने के लिए 1 यूनिट ले रहा है। मींस उसका टाइम स्पैन जो है, जितने टाइम में उसने पहले चेंज हो रहा था वो उसका हाफ हो गया है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन ए कंप्रेस्ड वर्जन। whatever is happening in this new signal is happening at a rapid rate which is 2 times higher as compared to the rate of the original signal. So that's why it is known as a compressed version or scaling version, कि आपने सिग्नल को स्केल कर दिया, राइट। सो आप सीधा इसको ये मैथमेटिकली अगर नहीं ड्राइव करना चाहते तो सिंपली आपको बोला जाए कि x twice of t फाइंड आउट करो, डिवाइड द टाइम यूनिट, बिकॉज हम discussing the operation over the independent variable. So divide the time unit by given value, that is 2, -2 divided by 2, 1, right. Similarly 3 divided by x twice of t, 3 divided by 2, that is 1.5 or 3 by 2, right. So shape कोई चेंज नहीं हो रही, ठीक है, सिर्फ x एक्सिस जो है वो चेंज हुआ और सिग्नल कंप्रेस हो गया, राइट। शेप इसलिए भी चेंज नहीं हो रही क्योंकि हम इंडिपेंडेंट पे ही परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। दिस इज आल्सो वन ऑफ द आंसर कि शेप क्यों नहीं चेंज हो रही। शेप इसलिए चेंज नहीं हो रही क्योंकि हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y एक्सिस, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे। वी आर कैरिंग आउट नो ऑपरेशन ओवर द y एक्सिस पैरामीटर, दैट्स व्हाई द शेप विल ऑलवेज रिमेन सेम, ओनली द सिग्नल इज ईदर
shifting towards the left hand side or towards the right hand side, or it is flipping towards the vertical axis, or in case of scaling operation, the signal is as in the case of x of twice of t, the signal is increasing its rate of occurrence, or you can say that the signal has been compressed as compared to the original signal, right? So this is known as scaling operation. So अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो पूछ सकते हो. Yes, roll number 84, Rahul. Rahul 92, Rohan. नो सर, आ गया था. 95, Sachidanand. 95, Sachidanand. Sanchit Sani, 101. Sandhya, 102. Yes, sir. So, अगर आपको ये पता लग गया तो एक और चीज हम डिस्कस करेंगे, that is expansion. Let us assume that a is lesser than, that is the scaling factor is lesser than 1. So let us assume it is equal to 2, right? ये 2 की वैल्यू है, it is equal to 2, so it will become x of t divided by 2, right? अगर स्केलिंग फैक्टर जो है, जैसे यहाँ पे हमने +2 ये लिया था, a is greater than 1 लिया था, let us assume that a is lesser than 1 और उसका वैल्यू 1/2 है, तो ये t जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा उस केस में. तो जैसे t 2 से डिवाइड होगा, सीधा ग्राफ आप मैथमेटिकली भी कर सकते हो, ग्राफिकली सीधा हम करेंगे कि जो जैसे वो 2 से डिवाइड होगा टाइम पैरामीटर, क्योंकि वो दूसरी तरफ अगर आप इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पे डिवाइड हो रहा था पिछले केस में. तो -2 multiplied by 2 -4, 3 multiplied by 2 6. So the signal has been expanded now, right? And the rate of occurrence has been reduced drastically. Slow हो गया सिग्नल पहले के मुकाबले. This signal is very slow. ठीक है, एक sluggish सिग्नल है जो बहुत ही स्लोली चेंज हो रहा है. पहले वो 0 से 1 चेंज होने के लिए 2 सेकंड ले रहा था, अब 0 से 1 या 0 से 2 चेंज होने के लिए अब 4 सेकंड्स ले रहा है. So the rate of occurrence has been slowed down, and you can call this signal as an expanded version of the signal, right? So this is all about the 3 different operations that we can carry over the independent variable. जो आज हमने डिस्कस किए हैं वो सिर्फ कंटिन्यूस टाइम डिस्कस किए हैं. ये सारे ऑपरेशन जो हमने डिस्कस किए हैं, ए बी सी, टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सर और टाइम स्केलिंग, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पे भी अप्लाई हो सकते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में या ट्यूटोरियल क्लास में हम इसका एग्जांपल पिक करेंगे, जब ये शिफ्टिंग ऑपरेशन जो है और स्केलिंग ऑपरेशन जो है या रिवर्सल ऑपरेशन जो है, अगर हम डिस्क्रीट डोमेन में अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट रहता है और सिग्नल किस तरह से बिहेव करता है. जो ब्रॉड कंसेप्ट है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, स्केल शिफ्टिंग मींस लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग, स्केलिंग मींस कंप्रेशन और एक्सपेंशन, and reversal means flipping of the signal. So, ये सब चीजें रहेंगी, बट थोड़ा सा क्योंकि डीजी सिग्नल है वो डिस्क्रीट इंस्टेंट्स के लिए एग्जिस्ट करता है, इंटीजर वैल्यूज के लिए और नॉन इंटीजर वैल्यूज के लिए नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अदरवाइज कंसेप्ट सेम रहेगा. So, अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है, if you have any query regarding the discussion that we have today, you can ask. सर प्लीज आप ये नोट शेयर कर देंगे गूगल क्लासरूम पे? नोट्स में अपलोड कर दूंगा. हाँ जी. थैंक यू सर. Yes, 109. सर जो टाइम रिवर्सल वाला केस है, हाँ, उसमें ए की वैल्यू -1 होगी या फिर कोई भी नेगेटिव हो सकती है? हाँ, कोई भी नेगेटिव हो सकती है, -2 भी हो सकती है. अगर -2 होगी तो वो कंबाइंड ऑपरेशन हो जाएगा. आपको सिग्नल को रिवर्स भी करवाना है, साथ में स्केल भी करना है, दोनों चीजें हो जाएंगी. जैसे अगर हम इसी एग्जांपल में डिस्कस करें, यहाँ पे x twice of t है ना, अगर -twice of t होता तो ये सिग्नल जो है वर्टिकली फ्लिप हो जाता, कंप्रेस भी हो जाना था और उसने फ्लिप भी हो जाना था. ये भी चीज हम डिस्कस करेंगे. हमने कंबाइंड ऑपरेशन अभी डिस्कस नहीं किया,
तो वो भी चीज आएगी उसमें कंबाइंड ऑपरेशन में। तो रिवर्सल एक चीज है, और अगर आप उसको -2 कर देते हो, वन ग्रेटर मींस माइनस ट्वाइस ऑफ टी, माइनस थ्राइस ऑफ टी, तो आप स्केलिंग में चले जाओगे। ठीक है, रिवर्सल तो सिर्फ साइन का रिवर्सल हुआ, टी से -t में कन्वर्ट हुआ। जब आप उसके साथ 2 या 3 या -1/2 या -1/4 लगा दोगे, तो वो आप स्केलिंग ऑपरेशन में चले जाओगे। तो उसमें दोनों चीजें होंगी, आपको ओरिजिनल सिग्नल के कंपैरिजन में आपको सिग्नल को फ्लिप भी कराना होगा और उसको कंप्रेस या एक्सपैंड भी करवाना होगा। ऐसा ही शिफ्टिंग में भी है, अगर आप मान लो x माइनस ट्वाइस ऑफ टी है, +1 कर दिया जाए, तो x माइनस ट्वाइस ऑफ टी मीन्स उसमें आपका सिग्नल इन्वर्ट भी हो रहा है, स्केल भी हो रहा है और शिफ्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो वो भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि कंबाइंड ऑपरेशंस। एक साथ तीनों ऑपरेशंस करने हैं, स्केलिंग, रिवर्सल एंड शिफ्टिंग। शिवम क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो किसी में? Yes, any other question? So, आपकी जो क्लास थी उसमें जब क्लास स्टार्ट हुआ था तो 40 से अबव स्टूडेंट थे, और जैसे हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया पहला केस, और उसके बाद जैसे कुछ पूछा या क्वेश्चन क्वेरीज पूछी थी, तो उसके बाद स्टूडेंट जो है वो उनका काउंट जो है 40 से रिड्यूस होकर 35 हो गया। तो फिर मैंने उन्हीं 35 स्टूडेंट्स का जो है वो अटेंडेंस लिया हुआ है। बाकी जो इनिशियली शुरू में 40 से अबव काउंट था, 42 के अराउंड थे शायद, तो वो तब अटेंडेंस नहीं लिया। ठीक है, तो अभी जैसे 29 हो गया, तो इट मीन्स ऐसा नहीं कि जो अभी लीव कर रहे हैं उनको अटेंडेंस नहीं मिली। ठीक है, जो 5-10 मिनट बाद जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो वो उस टाइम जो स्टूडेंट लीव कर गए, तो उनका जो है वो एब्सेंट मार्क हुआ है। ठीक है, तो 42 से रिड्यूस होकर 35 स्टूडेंट जो हैं वो आज की क्लास में प्रेजेंट हैं, क्योंकि अभी जो लीव कर रहे हैं जैसे 29 हो गए, तो जो 5-6 लीव करके उनकी प्रेजेंट ही है, एब्सेंट नहीं है। ठीक है, बाद में कोई लीव कर रहा है एंड ऑफ द, जब क्योंकि टाइम पीरियड तो हो ही चुका है, क्लास का खत्म हो चुका है, 245 तक थी, अब 250 होने वाले हैं। ठीक है, तो वो कोई जब दिक्कत की बात नहीं है, बट आप शुरू में लीव कर देते हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, सो ये नोट्स में अपलोड कर दूंगा, जैसे संध्या और बाकी स्टूडेंट्स ने बोला है, तो नोट्स में अपलोड कर देता हूँ। थैंक एनी अदर क्वेश्चन? सर आपके पास बुक का पीडीएफ होगा? मैं देखता हूँ, अगर मिल जाएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। अगर नहीं हो पाया तो आप बुक परचेज कर सकते हो, बहुत एक्सपेंसिव बुक नहीं है इसकी, 500 के अराउंड, इसके अराउंड जो है बुक आएगी, आपको इजली मिल जाएगी। आप अमेजन से या कहीं से भी जो है वो परचेज कर सकते हो। बुक परचेज करना इसके लिए थोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है आगे चल के 3-4 सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ये बेसिस एक तरह से आपका बाकी 2-3 सब्जेक्ट जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग आएंगे, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग आएगा, कम्युनिकेशन थ्योरी आएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आएगा, ऐसे ये चार सब्जेक्ट हैं ब्रॉडली जो इससे रिलेटेड हैं, तो आपको आगे चल के हेल्प होएगी। कौन सी बुक परचेज करनी है? बुक मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, मे भी ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे, उसमें ज़्यादा डिस्कशन हो जाती है, तो सभी बुक के जो है वो जो प्लस पॉइंट्स है और माइनस पॉइंट आपको बता दूंगा, वो आप उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी बुक परचेज करनी होगी वो आप परचेज कर सकते हो। ओके सर। सो ओके, थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड Thank डे। you, sir. Thank you, sir.